Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 3. Your course is obviously Human Resource Management, and today we are going to discuss and see some concepts of human resource planning. Before we move on to the next lecture, let's recall what we did in the last lecture. In the last lecture we discussed about job analysis, job description and job specification, and method of data collection for jobs, and then importance of job analysis. In the previous lecture we were discussing that job analysis is the most important and the vital part of almost all the functions of HRM. If you do not perform this job analysis and you do not come up with job description and job specification, you won't be able to properly perform any of the HR functions. So then we discussed about the parts of job analysis, which are already mentioned here, that it has two parts in the form of two documents. One document is called job description and the other is called job specification. In the job description document, you have to specify what job entails, that what are the requirements, the duties, the timings, the work environment of the job, what different tasks someone has to perform that job properly. And then in the specification part, the second document, you have to tell about the person, that what kind of person, having what kind of qualification, what kind of skills and what kind of capabilities can perform the job. So we discussed it in detail. Then we talked about these methods of data collection for job analysis, in which we talked about the observation method, then we talked about the individual interview method, then there was group interview method, and there were some different techniques. And at the end we said that it is going to be best if we combine two or more than two methods to collect the data, then we can have good results. Then obviously in the last slides we discussed about the importance of job analysis, and we came to know that no function of human resource management can properly be implemented or formed or processed until and unless you have done your job analysis properly. Now recall this diagram which we discussed in the beginning of our course. And today we are going to discuss about the first function, which is called the human resource planning. We did discuss it in a very short discussion, that human resource planning क्या होती है, इसमें क्या क्या functions होते हैं, but आज के lecture में हम इसको detail में discuss करते हैं और इसके different techniques, different methods को देखते हैं. So let's move on. First of all, we're going to see what human resource planning is and how do we define it. So human resource planning is the process of forecasting future human resources requirement to ensure that the organization will have the required number of employees with the necessary skills to meet its strategic objectives. First of all, the word forecasting. Obviously we all know that whenever we are planning, we're only doing it for future. Plans are not for past or for present, they are always for future. So in this HRP, human resource planning, we actually forecast our future in terms of employees. And what do we have to do? We have to forecast the future human resource requirements. That do we need some extra employees? Do we need some less employees than this year? This is all we are going to understand with the different techniques and tools. That sometimes, as we discussed in the first lecture, you have to come up with different situations, like surplus हो सकता है, shortage हो सकता है, equilibrium हो सकता है, and then accordingly हमें उसका action लेना पड़ता है. किस लिए करते हैं? To ensure that the organization will have the required number of people with the skill set the organization wants and with the capabilities and qualification and education which the organization is requiring in the future, in the coming years. तो ये सारी जो forecasting है future के लिए, that we all do in HRP or human resource planning. Now, what if what different functions or what different needs can be satisfied with HRP? That is
that effective HRP helps an organization achieve its strategic goals, long-term goals and objectives, anticipate and avoid shortage and surplus of human resources. That if your HRP is very effective, then you will not let your organization face surplus or shortage of employees. You will take the actions before time because you've been planning from last many years. तो आप accordingly action ले लेते हैं. सरप्लस होने लगता है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं, शॉर्टेज होने लगता है तो लोगों को हायर करके उसको यू हैव टू मीट द डिमांड एंड द सप्लाई, लेवल बैलेंस रखना होता है. एंड देन एज वेल एज कंट्रोल और रिड्यूस लेबर कॉस्ट्स. लेबर कॉस्ट्स क्या है? जो आप उनको सैलरीज देते हैं, जो आप उनको बेनिफिट्स देते हैं, या आपकी जो हायरिंग कॉस्ट आती है, ये डिफरेंट कॉस्ट हैं, ये सारी एम्प्लॉयज के साथ एसोसिएटेड है. तो इनको भी मिनिमाइज करना, कीपिंग द सेम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कीपिंग द सेम परफॉर्मेंस, कीपिंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, you have to decrease your employee cost or cost related to your labor. Now, HRP process, as we discussed in the first slides, that you need to do supply check, supply measurement, then you need to check the demand measurement, and then you have to fill the gap. Like in this slide, we can see that there are two functions here. That first you forecast the human labor supply. आप लोग इसमें देखते हैं कि how many people and what kind of people are there in the organization at this moment. अब आज के दिन, आज के वक्त कितने एम्प्लॉयज आपके पास हैं और उन एम्प्लॉयज की क्या एजुकेशन है, क्या स्किल लेवल है, कौन सी पोस्ट पे काम कर सकते हैं. जब आप ये मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो यू आर एक्चुअली फोरकास्टिंग द लेबर सप्लाई और यू आर लुकिंग एट योर लेबर सप्लाई. देन द सेकंड थिंग इज योर डिमांड, दैट यू आर लुकिंग एट योर लेबर डिमांड in the coming years, like 2 years, 3 years, 5 years और immediately in the next year कि कितने लोग आपको चाहिए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली अपने गोल्स अचीव कर सकती है. जब ये दोनों चीजों का आप एनालिसिस कर लेते हैं, लाइक दिस लाइन एंड दिस एरो शोज, तो आपके पास गैप एनालिसिस आ जाता है. यहां हम जल्दी से इसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं. लेट्स सपोज यू हैव 100 एम्प्लॉइज एंड यू नीड 120 एम्प्लॉइज. तो क्या होगा? 20 का शॉर्टेज आ जाएगा. 20 एम्प्लॉय आपका जो गैप होगा, that is going to be minus 20, that you need 20 more people. You got a shortage of 20 people. अब gap analysis में आपको क्या बताया? Comparing forecasted demand to forecasted supply to determine if there is a projected labor equilibrium, shortage or surplus. As I told you that there can be 3 possibilities. If you have 100 people and you need 120 people in the coming years, it's a shortage. You need 20 people. You are short of 20 people. That is one thing, one outcome, which is shortage. If you've got 100 people and you're going to need 80 people in the next year, that creates a surplus. 80 हैं आपके पास, 80 people, and 100 आपको जो है 100 हैं आपके पास and आपको 80 चाहिए, और 20 लोग अब आपके पास सरप्लस हो गए हैं. तो उनके लिए क्या करना है? उनको निकालेंगे या उनके लिए डिफरेंट हम मेथड्स यूज करेंगे. बट देयर इज अ गैप. इफ देयर इज अ गैप इन टर्म्स ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज, you have to take certain actions to make it to an equilibrium level. Or the third outcome or the option is opinion that you've got 100 people and you need 100 people in future, which means you've got equilibrium. You are not having a surplus of employees, you're not having a shortage of employees. So you take actions accordingly. Once you're done with the gap analysis, then you move on to the solution analysis. The solution analysis says that if you've got shortage, you are going to recruit people and then select them. But if you've got a surplus, you're going to decruit people. You're going to ask them to leave. Naturally,
some employees are already leaving because of the retirement, because of the accidents, because of the deaths. But sometimes you have to do the forced recruitment, that you have to ask them to leave. अब necessary actions आपने लेने हैं to meet your demand and the supply of the employees. And you can also here in short discuss that there are different techniques and tools which you can use to forecast your supply and also to forecast your demand. So to forecast your labor supply, the most important ones are HR policies. You have to obviously see them. Then change the external labor forces and techniques. आप इसमें से कौन कौन सी यूज करें? स्किल इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज, ये हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. रिप्लेसमेंट चार्ट्स होते हैं आपके पास. देन यू गॉट सक्सेशन प्लान्स एंड मार्कोव एनालिसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अब दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आपको दो किस्म की टेक्निक्स मिलती हैं फोरकास्टिंग लेबर डिमांड में. कौन कौन सी है? ट्रेंड एनालिसिस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. रेशियो एनालिसिस है, स्कैटर प्लॉट्स हैं, रिग्रेशन एनालिसिस है, and then you also have got qualitative analysis, which is nominal group technique and Delphi technique. तो अब इसको हम एक one by one जो है वो डिस्कस करते हैं. Now, while you are planning for your HR, you have to see a few things. Like in this slide, we can say that internal and external, there are two headings. In internal, you actually see the present employees who can be trained, transferred or promoted to meet the anticipated needs. Let's suppose next year आपको एक GM level का बंदा चाहिए, because your GM is retiring, he is going to leave. Obviously you will have to fill that position with somebody else. So you've got two options. One, that you can promote from within the organization. कि आपका अपना बंदा एक तैयार हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर था, फिर मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर बना, एंड नाउ ही और शी इज रेडी टू बिकम अ जनरल मैनेजर. तो ये आपकी इंटरनल सोर्सेज होगी या इंटरनली आप देख लेते हैं. अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनीबडी दैट यू कैन प्रमोट एंड फिल दैट पोजीशन, you can always go and hire from outside the organization, which is the external people in the labor market not currently working for the organization, including those who are employed elsewhere. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप बंदा लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो काम अभी नहीं कर रहा. ये आपकी सारी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. who are unemployed and who can be expected to join the organization to meet anticipated needs. मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म में अगर आपको शॉर्टेज आया है तो फर्स्ट यू विल हैव टू सी कि आपका इंटरनली बंदा प्रमोट हो जाए और वो उसकी पोजीशन ले ले. एंड देन यू आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग इट एक्सटर्नली, कि बाहर से बंदा हायर कर लें, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ले आए या लेबर मार्केट से ले आए बंदा. तो ये आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल के कॉम्बिनेशन है. कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं विच एवर इज फीजिबल और जो आपको ज्यादा सूट करता है. इसके लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट यू डू सम एनवायरमेंटल स्कैनिंग, which means that environmental scanning involves assessing factors that affect the external labor market as well as the organization's ability to find and secure talent from outside the organization. Let's discuss it with examples. अगर लेबर मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो जीएम बन सकते हैं, तो दैट मीन्स लेबर सप्लाई जो है आपकी, लेबर मार्केट जो है आपकी, उसमें बहुत सारे लोग कैपेबल हैं और कोई ना कोई आपको इजीली मिल जाएगा एंड कम पे पे भी मिल जाएगा, बिकॉज मार्केट की कंडीशंस बड़ी खराब हुई हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही. एंड ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट जितने भी कैपेबल हैं, दे कैन बिकम वेरी गुड जनरल मैनेजर्स, बट बिकॉज देर आर नो पोजिशंस, देर आर नो जॉब्स, तो आपकी बार्गेनिंग पावर जरा हाई होगी ऑर्गेनाइजेशन की. आप एक ऐड देंगे, मेनी पीपल आर गोइंग टू अप्लाई, उनमें से आप अच्छा बंदा सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर जीएम लेवल का बंदा आपको मार्केट से मिल ही नहीं रहा, देन यू माइट हैव टू ग्रैब इट फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. उसको ज्यादा पे दे के ले आए, ज्यादा इंसेंटिव्स दे के ले आए, या आप अगर मार्केट में भी शॉर्टेज है लोगों की, अच्छे जीएम्स की, तो आपको उसको अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा. सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आपने देखना होता है कि लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है. क्या लोग ज्यादा पैसा डिमांड करने लग गए, क्या लोग पैसा नहीं ज्यादा डिमांड करे, दे आर आउट ऑफ जॉब्स और दे आर इन द जॉब्स,
ये सारी आपने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को स्कैन करना होता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, तो कितने पैसे दे रही हैं, कैसे उन्होंने जीएम को लेके आए हैं। दिस इज ऑल योर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर टूल्स एंड टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किल इन्वेंटरीज। आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, यू सिटिंग इन ऑफिस, और आपको कैसे गिनती तो नहीं करेंगे, गिनती करेंगे, मे बी पीपल आर एब्सेंट, मे बी पीपल आर नॉट वर्किंग इन दैट शिफ्ट, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसको केटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्वेंटरीज बनाई होती हैं, लाइक अ रजिस्टर इट यूज्ड टू बी। जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैक इन 1950s एंड 60s, बट आजकल क्या होता है कि आजकल आप कंप्यूटर पे एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये लोग हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं हमारे पास, इस डिपार्टमेंट में कितने हैं, इस डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो आपके पास एक इन्वेंट्री बनी होती है जिसको क्या कहते हैं, स्किल इन्वेंट्री, जिसमें मेनली आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं कि किस एम्प्लॉय के पास, हमारे के पास कौन सी स्किल्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास टाइपिस्ट हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो टाइप कर सकते हैं। वो 5 लोगों की इन्वेंट्री में आपने लिखा होगा उनके नाम के सामने कि दे कैन टाइप, बिकॉज आप स्किल इन्वेंट्रीज बना रहे हैं। देन इसमें होता क्या, स्किल इन्वेंट्रीज कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ करंट एम्प्लॉयज। जो आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी करंट कैपेबिलिटीज आपने लिखी होती हैं, कंप्यूटर में जनरेट कर ले, रजिस्टर में बना ले, देयर आर डिफरेंट फेज। देन डाटा गैदर्ड फ्रॉम ईच एम्प्लॉय इंक्लूड्स नेम, उसका नाम लिखा होगा, एज होगी, डाटा डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब उसने ज्वाइन किया, एंड एक्सपीरियंस लिखा होगा, प्रेजेंट पोजीशन लिखी होगी, प्रेजेंट ड्यूटीज लिखी होंगी, बैकग्राउंड एजुकेशनल जो उसका बैकग्राउंड है वो लिखा होगा, क्या उसने ट्रेनिंग्स की हुई है, क्या उसने डिप्लोमास किए हुए हैं, एंड प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, स्किल एबिलिटीज एंड द इंटरेस्ट्स, कि किन किन चीजों में उसको इंटरेस्ट है, क्या क्या स्किल्स उसके पास है। तो आपने एक डॉक्यूमेंट परफॉर्म किया होता है जो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी आपके पास हैं, उसको हम स्किल इन्वेंट्रीज कहते हैं। देन देयर आर रिप्लेसमेंट चार्ट्स। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। रिप्लेसमेंट का जैसे आपको मतलब पता होगा कि कौन बंदा किसको रिप्लेस करेगा फ्यूचर में या कर सकता है। तो रिप्लेसमेंट चार्ट्स आर टिपिकली यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ पोटेंशियल इंटरनल कैंडिडेट्स फॉर द फर्म्स मोस्ट क्रिटिकल पोजीशंस। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा किसको रिप्लेस कर सकता है। लेट्स सी इट इन अ टेबल। Now, before we start analyzing this table, I would like you to see these 2 boxes here, the key. इनके लिए जो की बनी हुई है, सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट परफॉर्मेंस के लिए 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, 1, 2 एंड 3। आउटस्टैंडिंग जिसका होगा उसमें ये ग्रीन बॉक्स और ये ट्रायंगल बना होगा, जिस भी ये नाम लिखे हुए हैं, इस तरफ हम बाद में आते हैं। सेटिस्फैक्ट्री के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल बट इट इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी ट्रायंगल। और अगर नीड्स इंप्रूवमेंट है, उस बंदे के भी परफॉर्मेंस में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो देन इसमें एक स्लैश लगा होगा, ये जैसे स्लैश लगा हुआ है, ये इसकी की है। इसको पढ़ने से पहले ये की को देखना पड़ेगा। देन द सेकेंड थिंग इज प्रमोशनल पोटेंशियल, कि क्या प्रमोट होने के काबिल है, नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या मतलब है। अच्छा, रेडी नाउ का मतलब ये है कि ही और शी, whoever the employee is, he or she is completely ready to become a next level officer, a next level manager. तो उसमें empty box होगा येलो। If needs future trainings, कि अभी further trainings चाहिए, तो फिर उसमें एक डॉट लगा होगा विच इज ऑरेंज कलर और रेड कलर। और अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है या उसकी प्रमोशन जो है वो क्वेश्चनेबल है अभी, कि यू कैन नॉट प्रमोट दैट पर्सन, तो फिर उसमें ये पर्पल बॉक्स पूरा फिल हुआ होगा। नाउ आफ्टर लुकिंग एट दीज थिंग्स एंड क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इट, देन वी विल मूव ऑन टू दिस थिंग। लेट्स सपोज कि आपके पास ये प्रेसिडेंट है और इसने मूव करना है, ही इज लीविंग, ही इज रिटायरिंग और ही इज नॉट देयर एनी मोर। Now you have to promote somebody
from these four boxes. There's 1, there's 2, there's 3, and there is this fourth box. And there are how many people? 3 of them are here, 3 of them are here, and 3, and then another 2 here. So you've got plenty of choices to make somebody president of the company. But the issue is that before you are going to promote this person into a president's office or a president's seat, you'll have to look at a few factors. जो factors कहाँ से हमें मिलेंगे? Key से मिलेंगे. Then we are going to compare कि कौन तैयार है या कौन तैयार नहीं है. There is another thing, this in number, which is 60, 47, 45, 56, 55 and 63, 42, 47, 59, or 46 and 60. Now these are the ages. कि कितनी age होगी है इसकी, उस हिसाब से हम देखेंगे. Now let's analyze that you've got this person here, vice president है, human resources department का है, and you've got 3 options. But before you move on to these options, you will have to see that who is actually ready to become the president. अब अगर आप इस बॉक्स में देखें तो ready now वाले में empty है. So we see that this person is ready to become the president. Fine, that's fine. But we'll have to see the performance level of this person as well. Now if we look at this thing, it's also available here. So that means if we select this person as a president, we don't have any problem, because he is ready now and he is performing outstanding. तो ये दोनों इसकी शर्तें जो हैं, दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट बन सकता है. Now let's look some other options जिसमें हम देखते हैं कोई ऐसा एग्जांपल. Let's see this one. This marketing person in the first row, he is ready to be promoted and he is also performing outstanding. So we've got another option. We had this option, now we've got this option as well. Let's see some other option from this side. Okay, fine. Now this person is also ready to become a manager or president, but this thing here is only satisfactory, it's not outstanding. While in other 2 cases, it's outstanding. They are performing very well, but he's not performing that. So we cannot go with this option because we've got better options available. Now, he is ready to be promoted, he is ready to be promoted. He is performing outstanding, he is performing outstanding. But the issue is that if we'll have to look that his age is 60, his or her, and this person has got 59 years of age. Now, what this can do for us is that if the company policy says, which according to this chart I cannot say, but let's suppose if the company policy says that a person will be retired at the age of 60, then we cannot go for this person, because if we are going to make him a president, maybe after a few months we'll have to retire him as well, because he is going to complete his age. Then we can go with this option. This is safe because he is there at least for 1 year. But if the retirement area or the retirement plan is like 65 years, then we can go with this option, because this person might have more experience, because he's little more aged and this might have more experience, and they've got the same qualification and same level, performing outstandingly and ready now to be promoted. So this is what a replacement chart can do for you. Same is the case with all these positions. Once this position will be empty, you can hire somebody from here, or you can promote somebody from here, or you can hire somebody from here. You can take different options. And again, for these charts you have got these options, for this chart you've got these options, and for this chart you also have got these options. So this is an example of replacement charts, that you can actually understand the people available with you and who can fill the position of different hierarchy levels, who can become a president, who can become a vice president. So these are
a little examples, but first you'll have to understand this key. Please note it down and understand these signs, so that when you're reading this diagram, you won't have any problem and you'll be able to replace a person quickly. Now, the next method is trend analysis. This is to forecast your future thing. Now, trend analysis involves studying the firm's employment level over the last 3 to 5 years to predict future needs. How do we go about it? That let's suppose in 2010 we had 100 employees. Now, this is just a record. The whole part above 2014 is the record, and you're looking at this record which says that in 2010 you had 100 employees, but in 2011 they increased because of any reasons to 110, which is what? A 10% increase. And then in 2012 they became 121, which is also a 10% increase from 2011. And then when you see in 2013 you've got again 10% increase of employees, which is 133. So now you've got data of 1, 2, 3 and 4 years, and now you're in year 2014. Now this is going to give you some clear idea that because in the past, because in the last 4 years it has been, the number of employees has been increasing at the rate of 10%. So simply what you're going to do is that you are going to take this figure and multiply it to 0.1, which is going to make it to 146 roundabout. You need 13 more employees to make an increase of 10%. So only looking at your past records, you can assess your future needs, that we are going to need 146 employees in the year 2014. This is also one of the analysis that you can use for your very effective human resource planning. This is called trend analysis. Now, the succession plans. Succession planning is also a kind of replacement charts, but if you've heard about kings, that their elder son or eldest son is going to replace the king, वो क्या हो रही होती है? सक्सेशन हो रही होती है कि सबसे बड़ा बेटा जो है वही बादशाह बनेगा. अगर सबसे बड़ा बेटा नहीं है तो उसकी डेथ होती है, कुछ है, तो फिर नेक्स्ट वाला बनेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक पोजीशन जो है वो कैरी ऑन करनी होती है फैमिली के साथ साथ. इसी तरह सक्सेशन प्लानिंग किस लिए करते हैं हम? फोरकास्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इनसाइड कैंडिडेट्स इज particularly important in succession planning. Succession planning सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनल लोगों की करते हैं. और इसमें मैं अगर आपके साथ रिलेट करूं तो फैमिली बिजनेस की एग्जांपल रिलेट करते हैं. लेट्स सपोज एक शॉपकीपर है जिसने बड़ी मेहनत से एक शॉप बनाई है, और ऑब्वियसली विद द टाइम, विद द एज, अब उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है. अब वो सबसे अपने अच्छे बेटे को या अच्छे एम्प्लॉय को या अच्छे किसी बंदे को देखेगा जो उसके साथ बड़ी देर से काम कर रहा है, और उसको वो अपनी सीट दे देगा. जिस तरह आपने फैमिली बिजनेस में देखा है कि ज्यादातर जो कैश काउंटर्स पे लोग होते हैं, दे आर वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स. व्हाई? बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ दैट शॉप. कोई भी फैमिली बिजनेस होता है, द चेयरमैन और द डायरेक्टिंग मैनेजर्स और दीज पीपल, ऑल द टॉप नॉच, they are from the family. Why? Because you want to replace somebody from inside and somebody who is related to you, or at least somebody who can understand the business. तो उसमें succession planning हम करते हैं. Then succession planning refers to the plans a company makes to fill its most important executive positions. Because एग्जेक्टिव पोजीशंस पे आपके सारे डिसीजंस हो रहे होते हैं, वहाँ फैसले हो रहे होते हैं, वहीं आपका सारा कुछ जो है वो डिसाइड हो रहा होता है. तो सक्सेशन प्लानिंग में आप उसको इंक्लूड करते हैं और ऐसा बंदा प्रमोट करके उस की पोजीशन पे लेके आते हैं जो आपके लिए इन द फ्यूचर वैल्यूएबल होता है, जो इन द फ्यूचर काम करने काबिल होता है. तो इसको हम सक्सेशन प्लान कर देते हैं इसको. देन देयर इज अ कोरिलेशन और प्रोजेक्शन मेथड.
जिसको अगर आप इधर देखें तो इफ वी गॉट अ डाटा अवेलेबल, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में हमने ये देखना है कि 200 ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स। अब हमने देखा कि साइज ऑफ हॉस्पिटल अगर 200 बेड्स का हो तो 240 नर्सेज आर इनफ फॉर 200 पेशेंट्स, ठीक है। देन इफ you've got a 300 bed hospital, you need staff of nurses of 260, ये भी इंक्रीज कर गया, ये भी इंक्रीज कर गया। 400 के लिए 470, 500 के लिए 500, 600 के लिए 620, 700 के लिए 660 एंड देन 800 के लिए 820 एंड 900 के लिए 860 आपको चाहिए लोग। दिस इज जस्ट द डाटा ऑफ नर्सेज। You can also take number of doctors, number of employees, number of manufacturers, number of guards, number of gatekeepers। तो आप उसका एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं जो इस साइड पे बना हुआ है। अब यहाँ देखें कि अगर हमारे पास डाटा नहीं है कि 500, लेट्स सपोज हमारे पास इधर कोई एक डाटा नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है कि हम कितने एम्प्लॉयज को जो है 900 तक हमारे पास डाटा है। लेट्स टेक इट 1100 कि हमने 1100 बेड्स का हॉस्पिटल बनाना है तो कितनी नर्सेज चाहिए होंगी। तो कोरिलेशन के रिकॉर्ड से हमें इस तरह फौरन पता चल जाएगा जब हम इसको मैच करेंगे दैट वी नीड एटलीस्ट 1100 नर्सेज। इसी तरह अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, लेट्स सपोज 950 का आपने करना है, 950 यहाँ फॉल करेगा, 950 को इधर फॉल करवा लेंगे। द लाइन्स आर लिटिल different, but if you're going to take a straight line, it is going to give you the exact number कि कितने नंबर ऑफ नर्सेज आपको चाहिए। तो ये एक और हमारे पास एक बड़ा अच्छा मेथड है कि जिससे हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। नाउ वैकेंसी एनालिसिस। वैकेंसी एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं, टर्नओवर। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन योर सेल्स एज वेल, फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं, बट हियर इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। टर्नओवर का मतलब यह है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक सर्टेन टाइम में आपको छोड़ के चले गए हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय था और 10 एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले गए एक साल के अंदर अंदर, तो उस साल का टर्नओवर आपका होगा 10 एम्प्लॉइज और 10% ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि 10 लोग आपको छोड़ के चले गए हैं और वो जो 10 लोग छोड़ के गए हैं उनकी जगह आपने नए लोग रिप्लेस कर लिए। तो टर्नओवर मींस कि एक की जगह दूसरा टर्न आ गया। और इसी तरह सेल्स में भी हम करते हैं कि जो हमारे पास सप्लाईज आई होती हैं, हम उनको कहते हैं कि इतनी चीजें बिक गई हैं और फिर इतनी चीजों को उसने फ्रेश चीजों ने रिप्लेस कर दिया है। यहां भी यही है कि कितने एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं और कितने ने उनको फिर रिप्लेस किया है। तो दैट इज कॉल्ड अ टर्नओवर परसेंटेज रेशियो, या जिस फॉर्म में भी आपने लेना है। अच्छा, वैकेंसी एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास टॉप मैनेजमेंट जो है वो 100 की है, मिड मैनेजमेंट जो है दैट इज 200, लोअर मैनेजमेंट 600, फिर 600 स्किल वर्कर और असेंबली वर्कर्स आर 2000। और हमारा वही ट्रेंड एनालिसिस या पास्ट एनालिसिस में बताता है कि टॉप मैनेजमेंट एक साल के अंदर अंदर 20% लोग छोड़ के चले जाते हैं, विच इज इक्वल टू 20 पीपल। मिड मैनेजमेंट में 24 लोग हमें छोड़ के जाते हैं, विच इज इक्वल टू 48 पीपल। एंड लोअर मैनेजमेंट में 22% छोड़ के जाते हैं, विच इज इक्वल टू 132 पीपल, बिकॉज 600 है तो उसका 22 अगर निकालते हैं 132 बन जाएगा। फिर स्किल्ड वर्कर में आपका जो टर्नओवर रेशियो है दैट इज 16%, जो कि 96 लोग होते हैं, या आपको ईयरली या किसी एक सर्टेन टाइम में छोड़ के चले जाते हैं। असेंबली वर्कर्स जो सबसे लोअर वर्कर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं असेंबली लाइन में, जब जहां डिफरेंट पार्ट बाय पार्ट चीजें बन रही होती हैं, वहां आपके पास 12% जो है टर्नओवर है। ये टर्नओवर परसेंटेज ऊपर लिखी हुई है। दे मेक इट 240, तो दैट मींस कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर टोटल आपको 536 लोग छोड़ के चले जाएंगे, आउट ऑफ विच टोटल आपके पास कितने हैं 3500, और उसमें से 536 आपको छोड़ के चले जाएंगे और इतने आपके पास रह जाएंगे लोग 2964। तो ये आपकी सप्लाई को मेजर कर रहा है कि अगले साल में आने वाली जो आपकी सप्लाई है वो कितनी होगी। और इसमें एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि आपको ये भी इंडिविजुअली भी पता चल जाता है कितने लोग इस डिपार्टमेंट से छोड़ के गए,
प्लस आपको ये पता चल जाता है कि कितने लोग रिमेनिंग हैं हर डिपार्टमेंट में। तो इसको अगर हम इसका टर्नओवर का रेशो निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 536 को डिवाइड कर दें 3500 से, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे हमारे पास और जो टोटल छोड़ के चले गए, तो हमारे पास जो है वो रेशो आ जाती है 15.31% टोटल जो है लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्या किया हमने, इसको डिवाइड किया इसके साथ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वी हैड एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वी एक्सपेक्ट दैट दे आर गोइंग टू लीव, उसको डिवाइड किया और हमारे पास ये रेशो आ गई। इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 100 तो यू विल गेट दिस फिगर विच इज 15% और 15.31%। इतना आपका टर्नओवर रेशियो निकल आया। अब आपको ऑब्वियसली खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम प्लान करें तो हमें प्लान करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमें पता होगा कि 20 लोग इधर चाहिए, 48 इधर चाहिए, 132, 96 और 240 इधर चाहिए, और टोटल हमें 536 लोगों को हायर करना है। तो हमें वेकेंसीज पता चल गई हैं कि कितनी वेकेंसीज हमारी होंगी इन द कमिंग ईयर, बिकॉज ये हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि इतने लोग हमें छोड़ के जाते रहे, इस साल भी इतने लोग छोड़ के जाएंगे। तो ये वैकेंसी एनालिसिस का बड़ा इंटरेस्टिंग एक टूल एंड टेक्निक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग का एक और फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि ये हमारे पास प्लेसमेंट चार्ट्स हैं फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, जिसमें हमने क्या किया जी, वेस्टर्न डिविजनल सेल्स मैनेजर हमें चाहिए। अब वेस्टर्न डिविजनल सेल मैनेजर जो है उसकी परफॉर्मेंस आ गई, या आपकी करंट पोजीशंस आ गई, या आपके पास कैंडिडेट्स की ऑप्शन आ गई। ये बंदा बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। नाउ इशू इज कि इनको देखना पड़ेगा। जो कैंडिडेट 1 है वो वेस्टर्न ओरेगॉन सेल्स मैनेजर जो अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, हमें कौन सा चाहिए, डिविजनल सेल्स मैनेजर चाहिए। अच्छा, ये एरिया के लोग हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और ये रेडी नाउ है, जो हमने अभी रिप्लेसमेंट चार्ट में भी डिस्कस किया था। देन देयर सेकंड पर्सन कैलिफोर्निया का है, आउटस्टैंडिंग तो है बट नीड्स ट्रेनिंग, अभी प्रमोट होने काबिल नहीं है। तो इसमें बड़ा क्लियर आइडिया हमें मिल जाता है कि वेस्टर्न डिवीजन वाला जो है ये बंदा इसको रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज एक तो इनका एक्सपीरियंस उसी जगह का है इस बंदे का, प्लस ही इज आउटस्टैंडिंग, प्लस ही इज रेडी नाउ। तो इस तरीके से आप सक्सेशन प्लानिंग को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं कि कौन बंदा किसको रिप्लेस कर रहा होगा फॉर की पोजीशंस। अच्छा जी, एक और तरीका जो है हमारे पास, जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया था स्किल इन्वेंट्री का, तो ये इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। It's not a rocket science or anything. It's simply a system which contains the name, the qualification, the trainings conducted, the trainings taken, and different areas related to your employees. जो आपने कंप्यूटर में मेंटेन किया होता है, जो आप एक एक्सेल की शीट में मेंटेन कर सकते हैं, वर्ड की उसमें फाइल में मेंटेन कर सकते हैं, या एक रजिस्टर की फॉर्म में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट HRIS इंफॉर्मेशन सिस्टम, then it is more related to in fact it is only related to your computers, कि आपने कंप्यूटर में एक डेटाबेस बनाया हुआ है। skill inventories can be made in registers, on papers or different places, but HRIS most of the times they are softwares like Orange HRM, Oracle, PeopleSoft. They give you certain facility कि आप उसमें उनके नाम लिख सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स लिख सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से उनकी डिग्रीज है, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप इसमें सारा कर सकते हैं। और एंड में आपको पता चल जाता है कितने लोग आपके पास हैं। पर्सनल डाटा सबसे पहले, जेंडर आ जाता है, डिपार्टमेंट आ जाता है, मैरिटल स्टेटस आ जाता है, एक्सेट्रा, एज आ जाती है। देन यू कैन हैव देयर एजुकेशनल स्किल्स, डिग्री अर्न्ड, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज स्पोकन एंड स्पेशलिटी स्किल्स. Then you can also add their ability, knowledge on the specific equipment and software which they can use. Then job history आ जाती है कि कैसा परफॉर्म करते रहे हैं, कैसा इनकी परफॉर्मेंस रही है, अच्छी, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री और क्वेश्चनेबल, ये वो. Then memberships and achievements, कि कितना इन्होंने कितनी जगहों के, कितनी डिफरेंट चीज़ों के ये मेंबर्स बने हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कितना इनके पास जो है वो कितनी चीज़ें इन्होंने अकम्पलिशमेंट की हैं अपने टेन्योर में, अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में. देन कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, आप ये देखते हैं कि पास्ट में हमारे पास ये कितना जल्दी ग्रो करके आ रहा है, और ये सॉफ्टवेयर्स आपको
बड़ा अच्छा एनालिसिस करके दे देते हैं. इफ यू पुट द राइट डाटा इनटू दी सॉफ्टवेयर्स, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर यू कि आपके लिए नेक्स्ट बंदा तैयार कौन हो सकता है, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली वो फॉर्मूलाज लगे होते हैं और सारा कुछ होता है. तो इट एक्चुअली टेल्स यू कि किस बंदे को आपने किस जगह पे कितनी देर तक आप उसको प्रमोट कर सकते हैं. तो ये HRIS का सिस्टम भी आजकल काफ़ी यूज़ होता है और उसमें फिर लोग जो है सप्लाई एंड डिमांड को देख लेते हैं. देन देर आर पर्सनल रेशोज. ये स्पेशली हमें काम आता है जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं. मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पास्ट एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपने क्या किया, पास्ट एक्सपीरियंस हैज डेवलप्ड दीज रेशियोज फॉर रिक्रूटिंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट. आपने एक अकाउंटेंट को हायर करना था और उसके लिए जब आपने ऐड दिया तो लेट्स सपोज आपके पास 12 एप्लीकेंट्स आई और 12 एप्लीकेंट से आपने देखा कि ओनली 1 लुक्स प्रॉमिसिंग, बाकी 11 फजूल थी एप्लीकेशंस. ऐसे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था. अच्छा ठीक है, आपने उसको इनवाइट किया इंटरव्यू पे. लेट्स सपोज यू हैव इंटरव्यूड 5 पीपल और उसमें से एक बंदा है जो एक्चुअली इस काबिल था कि आप उसको जॉब ऑफर कर सके, बाकी सारे केपेबल नहीं थे. इसके एंड में इसका हम रेशो निकालेंगे. देन आपने जिस तरह इस एक को जॉब जब ऑफर की और 3 लोगों को अगर आप जॉब ऑफर करते हैं तो 2 उसमें से एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मली, एक फिर एक्सेप्ट नहीं करता जॉब बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ द सैलरी, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स, बिकॉज ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स. तो ये रेशो ट्रेंड एनालिसिस हमें बता रहा है, रेशो एनालिसिस करने के लिए कि कितने लोग अप्लाई करते थे, कितनों को आपने जॉब ऑफर दी, कितनों को इंटरव्यू किया और कितने कितने उसमें से सिलेक्ट होते आए. अच्छा जी, फिर वो कहता है कि ऑफ एवरी 10 न्यू वर्कर्स हु बिगेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम 9 सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोग्राम. एक इसमें से भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया. आउट ऑफ 10 जॉब ऑफर भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही एक बंदा छोड़ के आपको चला गया. तो इसलिए अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एवरी 100 एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड सो दैट 8.33 job interviews can be held, 1.67 jobs offered can be made, and 1.11 people must be trained so that we got 1 new cost accountant. मतलब ये है कि अगर आपने एक एम्प्लॉय रखना है इस रेशो के मुताबिक तो आपको एटलीस्ट 100 एप्लीकेशंस आनी चाहिए और फिर आप 8 लोगों को उसमें ऑलमोस्ट इंटरव्यू कर सकते हो और फिर एक या दो को ऑफर करोगे और 2 में से फिर एक आप ट्रेन करोगे या दोनों को ट्रेन करते हो तो एक छोड़ के चला जाएगा और एक आपके पास बच जाएगा. ये डिफरेंट रेशो निकाली हुई है. तो इस तरीके से जो हमारा पर्सनल रेशो है वो भी हमें एनालिसिस बता सकता है कि कितना एप्लीकेंट्स होंगे और उसमें से कितने फिर हायर हो सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज द मार्कोव एनालिसिस. ये आपको बड़ा डिटेल्ड मैट्रिक्स है जो आपको डिफरेंट चीजें बता देता है. लेट्स सपोज वी आर इन 2013. The slides are going to be a little messy, but I will try and make you comprehend this and make you understand this. Let's suppose we are sitting in 2013 and we are planning for 2014. ये years हैं. Now, very carefully look at these positions. Plant manager, 4 person. Team leaders, production and then production workers. ये आपके मेट्रिसेस बने हुए हैं. अगर आप देखेंगे तो प्लांट मैनेजर टू प्लांट मैनेजर, 4 person to 4 person, टीम लीडर टू टीम लीडर, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड देन अच्छा. अब दूसरी तरफ आपके पास यहां आ जाता है एग्जिट्स कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और यहां आपके पास आ जाता है प्रोजेक्टेड सप्लाई. ये हर पोस्ट की, हर डिपार्टमेंट की आपके पास प्रोजेक्टेड सप्लाई आ सकती है. अब हो क्या रहा है, गौर से जरा देखें कि पहले आपके पास यहां प्लांट मैनेजर्स जो हैं वो 4 है. 4 आपको जरूरत है, ये 4 आपके पास हैं 2013 में. एक आपको इसमें से छोड़ के चला जाएगा, मतलब 80% जो है वो रिटेंशन रहेगी और एक आपको छोड़ के चला जाएगा बिकॉज टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ plant manager we need is 5, total number of 4 person we need is 35, total number of team leaders we need is 110, and total number of production workers is 861. This is what we need. This is what the organization's requirement is. Now let's see that इस 5 में से
4 लोग आपके पास प्लांट मैनेजर ही रहेंगे और एक आपको छोड़ के चला जाएगा। फाइन। देन लेट्स सी एट 4% में वो कहता है कि 35 जो है ये टोटल है जो आपको चाहिए, जिसमें से 28 आर गोइंग टू रिमेन द 4 पर्सन्स, ये 4% ही रहेंगे। 3 जो है वो प्रमोट होके प्लांट मैनेजर बन जाएंगे और 4 छोड़ के चले जाएंगे। तो 35 में से ये 3 प्रमोट हो गए और ये 4 छोड़ के चले गए, तो 7 खत्म हो गए। तो 28 आपके पास 4% के 4% ही रह जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट आ जाए टीम लीडर पे। 110 टीम लीडर आपको चाहिए। अब 77 आपके पास हैं, होंगे नेक्स्ट ईयर तक। 12 इसमें से 4% बन जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगी। और 8 जो है उनकी डिमोशन हो जाएगी, वो प्रोडक्शन वर्कर में दोबारा चले जाएंगे। और 13 आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये प्रमोशन डिमोशन का जरा टेक्निकल है कि कुछ लोग प्रमोट हो गए, कुछ लोग डिमोट हो गए, और इधर रह गए 77। इफ यू माइनस 12, 8 and 13 out of 110 you will get this figure, the 77। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट के लिए आ जाते हैं। अब प्रोडक्शन वर्कर जो थे वो आपके पास इधर देखें असल में कितने हैं, उन्हें कितने चाहिए, 861। 620 आपके पास 2014 में प्रोडक्शन वर्कर ही रहेंगे, 189 छोड़ के चले जाएंगे और 52 प्रमोट होके आपके पास टीम लीड बन जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपने एनालिसिस किया पास्ट ट्रेंड और अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स, तो आपने देखा कि प्रोजेक्टेड सप्लाई आपके पास कितनी आ जाएगी। अब ये मैं कैसे फिगर लेके आया हूं, 4 + 3। 4 कौन से थे, प्लांट मैनेजर जो ऑलरेडी थे। 3 जो 4% से प्रमोट होके इधर आए, अगर मैं टोटल करूं इसका तो ये बन जाते हैं 7। इसकी प्रोजेक्टेड सप्लाई देखूं तो 28 + 12, बिकॉज 12 यहां से प्रमोट होके आया तो 40 आ गई। इसकी प्रोजेक्टेड सप्लाई 129 आ गई, इसकी प्रोजेक्टेड सप्लाई 628 आ गई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लेट्स सपोज आपको मैनेजर 5 ही चाहिए, प्लांट मैनेजर, लेकिन आपको पता है कि 2014 में आपके पास 7 आ जाएंगे, तो इट इज अ सरप्लस ऑफ 2। अच्छा, अब 4% पे आ जाए तो आपको 35 असल में चाहिए। 28 आपके ऑलरेडी हैं, यहां से प्रमोट होके आ रहे हैं तो 40, तो आपके पास 5 का सरप्लस यहां भी आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द टीम लीड। टीम लीड आपको 110 चाहिए और प्रमोशन डिमोशन होने के बाद कैलकुलेट किया तो 129, तो देयर इज अ सरप्लस ऑफ हाउ मेनी पीपल, 19 पीपल सरप्लस हो रहे हैं आपके पास। अब इन तीनों जगहों पे प्लांट मैनेजर, 4%, टीम लीड, इस पे आपको ये सरप्लस अमाउंट आ रहा है, सरप्लस सरप्लस सरप्लस, कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आया, कहीं शॉर्टेज नहीं आया। बट व्हेन यू लुक एट दिस प्रोडक्शन वर्कर एंड हियर प्रोडक्शन वर्कर, और आप कैलकुलेट करते हो कि 8 इसमें से जो है वो आपके पास डिमोट हो गए आगे थे और 620 आपके पास रिमेनिंग थे, इतने छोड़ के चले गए, तो यहां आपके पास शॉर्टेज आ गया है। कितने का शॉर्टेज आ गया, वो इफ यू कैलकुलेट 861 में से माइनस कर दे जो प्रमोट हो गए और चले गए, तो आपके पास यहां सरप्लस आ जाएगा। तो मार्कोव एनालिसिस आपको बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस बताता है मैट्रिक्स फॉर्म में कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग प्रमोट हो रहे हैं, कितने डिमोट हो रहे हैं, और कितने लोग आपको सरप्लस, किस डिपार्टमेंट में सरप्लस आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज आ रहा है, और किस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड ऑफ एनालाइजिंग योर डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो सारे हो गए हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें हमने क्वांटिटीज यूज की, जिसमें हमने देखा कि इतने नंबर थे, इतने कम हो गए, रेशो आ गया, कोरिलेशन आ गया, रिग्रेशन भी होता है इसमें, और फिर हमने मार्कोव मैट्रिक्स देख लिया। देयर आर सम अदर टेक्निक्स विच आर कॉल्ड क्वालिटेटिव टेक्निक्स, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अच्छा, नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू क्वांटिटेटिव अप्रोचेस विच यूज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स rely solely on expert judgments, but two approaches used to forecast human resource demand or supply are the nominal group technique and the Delphi technique. ये दो टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं,
they are not quantitative, they are qualitative approaches or qualitative techniques of measuring or understanding or forecasting your labor supply or labor demand. Now let's discuss it by their names and their steps. First of all, nominal group technique. Nominal group technique में आप क्या कर रहे हैं? You've got different steps to perform. क्या steps हो सकते हैं? First step is to managers and line managers meet face to face. Line managers वो होते हैं जो directly labor के साथ involve होते हैं, और managers वो होते हैं जो line managers को control कर रहे होते हैं, hierarchy system. अब ये first step में face to face मिलते हैं. Second step में क्या करते हैं? Each member develop an idea, demand और training. ये जो nominal group और Delphi techniques हैं, ये और बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती हैं. दे आर नॉट ओनली यूज फॉर HRP, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दीज स्लाइड्स, इन आवर लेक्चर्स, वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब मैनेजर्स एंड लाइन मैनेजर्स ने पहले तो फेस टू फेस आपस को मिल लिया. देन हर बंदा एक आइडिया के साथ आता है. एवरी पर्सन डेवलप्स एन आइडिया. अब आइडिया डेवलप करने के बाद क्या होता है कि ऑल आइडियाज इन द स्टेप 3, all ideas are presented one by one. Let's suppose 10 लोग मिले, 10 लोगों की मीटिंग हुई है. Everybody came up with their own idea. You've got 10 ideas. And step 3 में the ideas are presented. आप सारे बैठे हुए हैं, 9 लोग बैठेंगे, एक जाके प्रेजेंट कर देगा अपना आइडिया. Then that person is going to sit, the other person is going to go and present his idea. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एट दिस टाइम व्हेन द आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड, नो डिस्कशन इज अलाउड. आपस में या उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स में किसी किस्म की कोई डिस्कशन अलाउड नहीं होती. यू जस्ट लेट दैट पर्सन प्रेजेंट हिज और हर आइडिया, और यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट. यू मे रिकॉर्ड अ फ्यू थिंग्स फॉर योर फ्यूचर references, but you're not allowed to discuss anything. Now, in the fourth step, clarification is sought by all members. Now, when all the ideas are one by one presented, then you're allowed to seek clarification. मतलब क्या है कि अगर आपको जो फिफ्थ प्रेजेंटेशन हुई थी उससे कोई प्रॉब्लम था कि ये आइडिया कैसे है, इसको क्लैरिफाई करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कितने लोग चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, all of you, you're allowed to discuss these ideas, to seek clarification for these ideas from that member. फिर उसका भी हक बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो आपको बताए कि what was his plan and what he actually meant regarding certain things. जब वो clarification आ जाती है, question answers हो जाते हैं, then you move on to the fifth point, which is called the evaluation point, ranking of each idea in private. हर बंदा दूसरे बंदे के आइडिया को रैंक करता है. लेट्स सपोज 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग एक दूसरे के आइडियाज को रैंक करेंगे. लेट्स सपोज कि ये आपके पास आइडियाज हैं 1, 2, 3, 4 and 5. लेट्स टेक 5 आइडियाज. अब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 लोग हैं, 5 आइडियाज हैं, और यू कैन टेक इट टू कि 5 आइडियाज हैं और 5 ही लोग हैं. हर बंदा जो है वो अपनी इनपुट देगा अबाउट ऑल द आइडियाज, कि वो आइडिया में कितना बेहतरी है, कितनी नहीं है. जब ये सारे अपने आइडियाज दे देंगे, अपने रिव्यू दे देंगे इस बारे में, तो एंड में आइडिया 1 का टोटल आ जाएगा, आइडिया 2 का टोटल आ जाएगा, आइडिया 3, आइडिया 4 एंड आइडिया 5 का टोटल आ जाएगा. लेट्स सपोज आइडिया 4 गेट्स 100 मार्क्स, आइडिया 5 गेट्स 120 मार्क्स, आइडिया 3 गेट्स 80 मार्क्स, idea 2 gets 90 marks, and idea 1 gets 130 marks. So now you are going to see कि 130 वाला idea जो है, because this was 120, this is 130, you are going to select this idea and you are going to implement it. अब ये आपका qualitative तरीका है करने का. Maybe in the end you are again falling into the numbers कि इतने लोग चाहिए, इतने लोग नहीं चाहिए, या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बट द टेक्निक, द मेथड और द प्रोसीजर यू आर फॉलोइंग वाज क्वालिटेटिव. इट वाज यूज्ड in words form, not in the numbers form.
there was no formula, there was no math, and there was no statistical tool which was applied. तो अभी ये एक आपकी nominal group technique होगी. Then there was Delphi technique, the second one. It's close to that, but let's see कि इसमें कौन से steps होते हैं और किस तरीके से उनको implement किया जाता है. The problem is identified. First step in the Delphi technique. Delphi is given on the basis of जिस बंदे ने टेक्निक बनाई थी उसके नाम से इसको टेक्निक का नाम दिया हुआ है. The problem is identified. प्रॉपर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने लोग मिसिंग हैं. देन इन दिस केस एस्टिमेट ऑफ डिमांड, कि कितने लोग चाहिए, कितने लोग हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी. एंड ईच ग्रुप मेंबर, ऑब्वियसली देर आर सर्टन डिसीजन मेकर्स, देर आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, देर आर सर्टन टीम मेंबर्स, और जो भी लोग हैं जिन्हें डिसीजन बनाना है, ईच ग्रुप मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर completing a careful designed questionnaire. Direct face-to-face contact is not permitted in this thing. हर बंदा अपना questionnaire fill करता है, accordingly solution देता है, and वो जमा करवा देता है. No face-to-face contact is allowed. Face-to-face नहीं मिलते इसमें. मिले भी तो they are not allowed to talk to each other. They just give their own ideas और ये questionnaire की फॉर्म में जमा करवा देते हैं. अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? After each member independently and anonymously completes the initial questionnaire, the results are compiled at centralized location. हर बंदा अपना रिजल्ट कंपाइल करता है, देखता है, और जो रिजल्ट्स बनते हैं वो एक सेंट्रल पोजीशन पे बनते हैं. लेट्स सपोज कोई आपका सीईओ है, कोई हायर मैनेजमेंट का बंदा है, वो सबके रिजल्ट्स लेके सबको अपनी सुपरविजन में रिजल्ट्स को बनवा लेगा, किसका आइडिया किस काबिल है. Now, each group member is given a copy of the result. मैंने आइडिया दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, डिफरेंट लोगों ने आइडियाज दिए. एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे एक्सपर्ट बंदे ने उसको एवेलुएट किया और हर बंदे को हर बंदे का रिजल्ट दे दिया. अच्छा, अब यहां तक रिजल्ट्स जो आइडियाज होते हैं, दे आर अननोन, दे आर एनोनिमस. नोबडी नोज कि ये किसका आइडिया है, बट देयर आर आइडियाज. तो हर बंदे को उसका रिजल्ट और अलॉन्ग विद ऑल द रिजल्ट्स दे दिया जाता है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, क्या वैल्यूएशन हुई है. अब होता क्या, फोर्थ स्टेप में क्या होता है? इफ देयर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ईच इंडिविजुअल यूजेस द फीडबैक फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स टू फाइन ट्यून हिज और हर इंडिपेंडेंट असेसमेंट. अलाउड होता है आपको कि आप फीडबैक फॉर्म पे लिख दें कि अगर आपको किसी का आइडिया पसंद नहीं आया या पसंद आया है या उसमें फाइन ट्यून करने की जरूरत है, उसमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, डिफरेंट चीज़ों की जरूरत है, आप लिख के उसको दे दें, तो वो आइडिया रिकॉर्ड हो जाता है और उसके रिजल्ट्स, उसकी फाइन ट्यूनिंग जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसको वो दोबारा जमा करवा दिया जाता है. द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेप्स आर रिपीटेड एज ऑफन एज नेसेसरी अंटिल द कंसेंसस इज रीच्ड. कंसेंसस का मतलब है कि सबका जब अग्रीमेंट हो जाता है. थर्ड स्टेप क्या है? ईच मेंबर गिव अ कॉपी ऑफ द रिजल्ट, गिवन अ कॉपी ऑफ द रिजल्ट. एक दफा रिजल्ट देते हैं, फिर वो अपनी फीडबैक देते हैं, एक दफा दूसरी दफा रिजल्ट जाता है, फिर अपनी फीडबैक देखते हैं. सर्टेन पीपल इन दिस टेक्निक ट्राई एंड लीव दी आइडिया जनरेशन. वो खुद ही अपने आइडिया को निगेट कर देता है, बिकॉज पहले उसको आइडिया ये नहीं होता कि बाकी लोग अच्छा इससे सोल्यूशन दे देंगे, बट जब अच्छे सोल्यूशन आना शुरू होते हैं तो सम पीपल जस्ट डिस्पोज ऑफ देयर सोल्यूशंस, और जो अच्छे सोल्यूशंस होते हैं उनके फीडबैक देके उनको कहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर लें. और ये बार बार 2, 3, 4, 5 जितना दफा भी रिक्वायरमेंट हो, जब तक 10, 15, 20 जितने भी लोग उस मीटिंग में हैं सबका कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता, तब तक ये थर्ड एंड फोर्थ प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं. तो ये हमारे पास थी डेल्फी टेक्निक, जिससे हमने देखा कि क्वांटिटेटिवली तो हम कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल टूल्स तो अपना रहे थे, बट क्वालिटेटिवली किस मेथड से हम जो है वो कर सकते हैं. समरी आ गई हमारे पास. आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि एचआरपी है क्या. उसमें हमें पता चला कि एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कहते हैं, जिसमें हमने लेबर की सप्लाई को देखना होता है कि हमारे पास कितनी लेबर है, फिर उसकी डिमांड को देखना होता है कि कितनी लेबर हमें चाहिए नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टाइम में. उसकी बेस पे हमने गैप एनालिसिस करना होता है. गैप एनालिसिस हमें बता देता है 3 सिचुएशंस. 1, there is a shortage. The other, there is a surplus. And the third is that there is an equilibrium.
शॉर्टेज होगा तो हम लोगों को हायर कर लेंगे, सरप्लस होगा तो हम लोगों को फायर कर देंगे, डिक्रूट कर देंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे किसी तरीके से भी। और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो वी वॉन्ट टेक एनी एक्शंस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम नंबर ऑफ पीपल एंड काइंड ऑफ पीपल। फिर उसमें हमने फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ी कि कौन कौन सी यूज होती हैं। सेल्स प्रोजेक्शन यूज हो सकती है, वैकेंसी एनालिसिस यूज हो सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस सक्सेशन और रिप्लेसमेंट चार्ट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि की का पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको शायद समझ ना आए कि सक्सेशन प्लानिंग किस तरह करनी है। देन वी टॉक्ड अबाउट स्किल इन्वेंट्रीज एंड यूज ऑफ HRIS, कि आपने लोगों की डिफरेंट स्किल इन्वेंट्रीज बनाई होती हैं जिसमें उनके नाम, एज, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग्स टेकन, ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है मेंटेन। आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, जो हमने शुरू में बात की थी कि राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल, राइट नंबर। तो कितने लोग हैं और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या स्किल्स है और किसको वो रिप्लेस कर सकते हैं, किसको रिप्लेस नहीं कर सकते। देन वी आई टॉक अबाउट द मार्कओवर एनालिसिस इन द एंड। पर्सनल रेशो निकाली कि कितने लोगों को आप अगर इंटरव्यू करते हैं तो उसमें से कितने लोगों को आप सिलेक्ट करने के काबिल होते हैं, और कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो कितने लोग उनमें से जॉब ऑफर लेते हैं। जॉब ऑफर लेने के बाद ट्रेनिंग में कितने लोग आपको छोड़ के जाते हैं और इवेंचुअली कितने लोग आपके साथ एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करते हैं। ये पर्सनल रेशो में निकाल लिया था। देन रिग्रेशन एनालिसिस है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिर ट्रेंड एनालिसिस पे हमने बात की कि ट्रेंड एनालिसिस जो है कि आप 3 या 4 साल का डाटा ले लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि किस तरह ग्रोथ आ रही है। जिस तरह हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि 10% इंक्रीज आ रही थी फ्रॉम 2010 टू 2013, और 2014 में हमने कहा कि 10% ही इंक्रीज आएगी बिकॉज आवर पास्ट ट्रेंड्स आर सेइंग सो। देन वी टॉक्ड अबाउट मार्कओवर एनालिसिस। मार्कओवर एनालिसिस मैट्रिक्स था जिसकी दोनों तरफ हमने पोस्ट लिखी हुई थी, एक तरफ पे एग्जिट लिखा हुआ था और नीचे हमने टोटल किया हुआ था, जिसमें हमें यह पता चलता था कितने लोग प्रमोट हो रहे हैं, कितने डिमोट हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग हमें चाहिए। और उसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि एट द सेम टाइम इन वन सिंपल टेबल हमें प्रमोशंस का भी पता चल रहा था, हमें डिमोशंस का भी पता चल रहा था, हमें एग्जिट का भी पता चल रहा था और हमें नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज का भी पता चल रहा था और नेक्स्ट आने वाली सरप्लस या शॉर्टेज, तीनों का हमने एनालिसिस किया था। तो ये इसको गौर से पढ़े, बुक से भी पढ़े, और इसका मटेरियल आपके साथ अटैच्ड है, उसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको ज़्यादातर हेल्प हो। इसके नोट्स सेपरेटली मैं आपको साथ भिजवा दूंगा और उसमें इंशाल्लाह आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सो लेट्स फिनिश अप एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली आप पढ़ते रहेंगे और आप समझते रहेंगे चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।